This is Tuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is the first time I'm doing a guest based podcast. So season two of Stuti Speaks will be more about the guests, and I'll be learning from them, talking to them, and doing like stuff together. So this will be my agenda of season two. Season one was mainly about the solo podcast, so you can check out season one on Spotify India for other details and stuff. So yeah, this is the season two, and I will be. I'm hoping that I'll be enjoying this one a little bit too much because this is all about my favorite guest. So let's start. Let's kickstart this journey with a bang. And today I have with me one of my guests, Nidhi Khanna. We met via a common friend. There were things that we were discussing, and there were spiritual sessions which we did together. There were many which we did together, and after four or five we were like that comfortable. Then when I thought of doing a podcast, I thought who else would be a better person than Nidhi, because like whenever we used to do it, it was mostly extended, like most of the times. So or delay nahi karte, I'll hang it, like I'll hand it over to Nidhi. Nidhi, can you introduce yourself a bit more, like what you do? And obviously I already explained how we met, but whatever you want to share, please go ahead. Hi, Stuti. Thank you so much for this lovely introduction. Hi, everyone. So it's not the first time Stuti and me are talking on this platform. However, this is my first time that I am, giving any मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है, दैट इज व्हाई मैं बहुत फंबल कर रही हूँ यहाँ पर मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर फॉर द फर्स्ट टाइम आई हूँ। आई होप ये जर्नी कंटिन्यू होगी यहाँ से, एंड जो थॉट्स आते हैं इतने सारे वो चैनलाइज करने के लिए मेरे को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। थैंक्स सुधी, थैंक्स फॉर दिस। So just to give you my brief introduction here, so I am a spiritual person. However, my awakening has started from past year when I went for a session in Vipassana. And with all credit goes to that common friend of ours who pushed me to go to Vipassana, do that 10 days session. And I did that, and somehow, my life just turned around. And, things which were, a big question in my life, I used to get I started getting the answers actually। मेरे को एक एक करके आंसर्स आने लगे। अच्छा ये इस वजह से हो रहा था, अच्छा ये इस वजह से हो रहा था, एंड ऑल क्रेडिट goes to that friend। We cannot reveal the name of that friend because of some reason, but yes, and she became the bridge, and Yeah, यहाँ that's how मैं और that's how Tuti we met. connected हुए। Yeah, Yeah. and that's how we met. So, without stretching it much, नया सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। सो वी थॉट टू डिस्कस ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस हियर। आई एम सॉरी स्तुति, आई एम टेकिंग योर पार्ट No, हियर। no, no, that's completely fine. And I think this is more about conversation only. We have not planned it, and always wanted to keep it as candid as possible. So I am actually loving it. The only thing I want to tell about the guest here, like people who are listening to us, that one common thing between us was Vipassana as well. So I also did a course of Vipassana in 2019 August, and that was a common thing which clicked, and that's how we start gelling up more. Okay, because even I did that course, and that course was also a point for me for my awakening journey. And people who are listening and listening for the first time, have you might not be having every word clear, like whatever we are talking about, but I can assure you that towards the end you might be able to relate to the few things, like whatever we are talking. The terminology might not be like exactly the way coming out, because जब when you are into some path तो एक particular तरह की terminology हो जाती है. So awakening spirituality, you might not be able to relate to it right away, but we are sure that जब तक ये session end होगा, you'll be having a gist of it. So yeah, let's start. So uh, you were telling something about EQ and spirituality, and when we are saying EQ, can you explain, I think, to the people who are listening, like what is meant to be, like what exactly is EQ all about? Absolutely. So let me start it with
the definition of IQ. Because everything in our world, if we'll see across all the nations, we are very much dependent on measuring IQ of a person. All our exams, whatever exams you look around the globe, all our exams are based on testing the IQ of a person. And somehow हम EQ को बिल्कुल साइड अलाइन कर देते हैं. However, अगर हम देखें on larger perspective, आप देखिए अभी IIT में कितने लोग जाते हैं. A number of people who sit for IIT exam, the aim they have to sit for the exams like IIT. I do not want to name or quote this IIT word, because some people can get offended, because of which ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पे सिर्फ IQ पे ही पूरा फोकस होता है. People just study 28 hours in a day of 24 hours just to get into these prime institutes to get the degree and all. And somehow, while they are in the process of getting that degree from these colleges, they identify that ये तो करने के लिए हम बने ही नहीं है. What are we doing? And if you look at the data, स्तुति, जहाँ पे कि लोग IIT कर रहे हैं, I mean, if a person like me, a common person with a humble background, उसका IIT या फिर किसी ऐसे प्राइम इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाता है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं एक प्राइम इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स कर रही हूँ और मेरा करियर सेट हो गया. आई मीन बिफोर गेटिंग इनटू दैट कॉलेज और प्राइम इंस्टीट्यूट मेरे को ये पता है मेरा करियर सेट है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है आगे जाके. आई मीन कुछ खराब नहीं होने वाला है. मेरा कुछ खराब नहीं होने वाला है, राइट. बट जब भी आप वो कोर्स परस्यू कर रहे होते हो, समहाउ आप किसी और दुनिया में खो जाते हो, बिकॉज आप रिलेट ही नहीं कर पाते हो उन थ्योरीज से. क्यों रिलेट नहीं कर पाते हो? बिकॉज वाइल यू वर टेस्टिंग योर IQ फॉर गेटिंग इनटू दीज प्राइम इंस्टीट्यूट, सारे एग्जाम्स के आप अपने IQ टेस्ट करते हो, आप अपने EQ को बिल्कुल साइड बिहाइंड कर देते हो और आप उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हो. आप ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हो कि दैट फॉर व्हाट एग्जैक्टली you are on this planet. आपका सोल पर्पस क्या है, या बेसिकली आपका जो बिहेवियर है, थॉट पैटर्न है, न्यूरल पैटर्न्स हैं, वो आपको किस तरफ कर रहे हैं या किस तरफ आपको लेके जाना चाह रहे हैं, राइट. सो उसको हम बिल्कुल भूल जाते हैं. सो व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस और EQ इज बेसिकली टू गेट दैट सेल्फ अवेयरनेस. राइट. एंड ऑब्वियसली ये मेरे साथ भी हुआ. आई वुड वांट टू पिच इन हेयर थोड़ा सा. जैसे ऑब्वियसली आई डिड माय इंजीनियरिंग, एंड क्योंकि इतना बैकग्राउंड और इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो ठीक है, बेस्ट ऑप्शन जो लगा वी पिक्ड इट अप. when I look back to that time and I see things now, obviously things are like अभी exposure बहुत ज़्यादा है and we can explore more things, and धीरे धीरे spirituality, meditation, these things came into picture, and that's how I started working on my creative side and basically connecting to the EQ, where exactly is like my EQ is there. So that's how you evolve. But initially वो सब IQ based होता है, whatever is and and I think counseling भी जो होती है colleges या फिर 12th तक, that is also IQ based. ये that is I think a loophole is there, क्योंकि वहाँ पे भी आपके EQ को नहीं हो रहा. And then how generally लोग बोलते हैं ना, जो इंजीनियर यूट्यूबर बन गए, इंजीनियर एक्टर्स बन गए, इंजीनियर, because you think that engineering is a safe place, and then you are still exploring your EQ, and that's how you evolve later कि मेरा तो ये भी एरिया में कुछ ट्राई करने का मन है, या मेरा तो ये भी एरिया में कुछ ट्राई करना है. And that's how I think we also started our journey, and later obviously comes the sole purpose. But yeah, that's a later thing. Yeah, you were saying something, please go ahead. Yeah. Every one of us has a inner voice, right? वो inner voice हम सबको सुनाई देता है. Whenever आप relate करिए, you have to take a decision. आपको एक डिसीजन लेना है, एंड देयर आर टू वॉइसेस इन योर हेड जो कि एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी आपको बात कर रहे हैं. यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि मैं किस वॉइस की सुनूं, मैं पॉजिटिव सुनूं, मैं नेगेटिव सुनूं. एंड हाउ यू मेक द डिसीजन पोस्ट दैट, आप डिसीजन कैसे बनाते हो? आप बनाते हो कैलकुलेटिव होके, आप अपने कॉन्शियस माइंड के, लॉजिकल माइंड के थ्रू जाते
करके वो डिसीजन बनाते हो। पूरी कैलकुलेशन आप लिख लोगे। इफ यू अगर आपको कॉपी पेन दिया जाए, आप पूरे अपने लॉजिक्स लिखोगे, अच्छा टिक 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 टिक, ये सारी चीजें हो गई हैं, इसके बेसिस में मैं अपना डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ, देन आई मूव फॉरवर्ड। समहाउ यहाँ पे भी आपने अपने इमोशनल साइड को या सबकॉन्शियस साइड को या इनर वॉइस को हम्म, कर दिया। सप्रेस कर दिया। सप्रेस कर दिया, तो सप्रेस करने से क्या होगा? सप्रेस करने से जब भी वो इनर वॉइस निकल के आएगी ना, दैट ही गोइंग टू पुट यू इनटू अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट, अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अ लॉट ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस सिचुएशन आपकी हो जाएगी। आपको हर चीज से फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी। छोटी छोटी चीजों के लिए आपने अपने आप को सप्रेस कर दिया, आपने बेसिक इनर वॉइस को सप्रेस कर दिया। उसके बाद आप कोई भी काम करोगे, आप खुशी से नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट मेंट फॉर दैट वर्क जो आपको दिया गया है या जो आप कर रहे हो। इफ आई गिव माई एग्जाम्पल ऑल्सो, तो मेरे को बेसिकली मैं इतनी अवेकन नहीं थी जितनी अब हूं, या मेरे को नहीं पता था मेरे को लाइफ में करना क्या है, या मेरा सोल पर्पस क्या हो सकता है, या मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरे को ये सुनाई देता था उस टाइम पे, मैं 90s और 80s के किड्स की बात कर रही हूँ, जब मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग दो ही ऐसे स्ट्रीम हुआ करते थे जिसमें आपको जाना है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आप एक ब्राइट स्टूडेंट हो, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स आपको प्रेज कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, राइट? सो मुझे पता है मैथ्स मेरे बस की नहीं है, मैंने बायोलॉजी, मुझे लगा मैं मेडिकल पे जाऊंगी, समहाउ मेडिकल भी नहीं कर पाई। आई देन बायोटेक्नोलॉजी, एंड ड्यूरिंग द बायोटेक्नोलॉजी आई गॉट दिस रियलाइजेशन, भाई यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, कुछ और तो करना ही पड़ेगा कुछ और जिंदगी करना ही पड़ेगा। में। ट्रू। दूसरे स्ट्रीम में आ गई ऑल टुगेदर। एंड मेरा स्ट्रगल देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में 3 साल स्ट्रगल किया, 10th 12th में स्ट्रगल किया, उसके बाद में आके फर्दर 10 15 साल अपने जॉब में स्ट्रगल करती रही, क्योंकि बैकग्राउंड किसी और चीज का बनाया, कर कुछ और रही कर हूँ और कुछ और है। एक्सपेक्टेशन ट्रू। मुझसे कुछ और है। एंड ट्रू। वो फ्रस्ट्रेशन रिजेंटमेंट वाला पीरियड, इफ यू नो काउंट इन माय केस, वो इतना बड़ा हो गया कि मुझे हर चीज में फ्रस्ट्रेशन होने लगी, मुझे हर चीज खराब लगने लगी, हर चीज मेरे डिसीजंस में मैं अपने इमोशनल साइड को बिल्कुल सप्रेस करके चलने लगी। एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरे को मेरे इमोशंस इतने ज्यादा फिल्म करने लगे कि मेरे सारे डिसीजंस उनसे इम्पैक्ट होने लगे। राइट। एबल टू मेक अ सिंगल राइट डिसीजन इन माय लाइफ। या फियर में ऑपरेट कर रही थी, गिल्ट में ऑपरेट कर रही थी, जितनी लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज है उन्हीं में ही ऑपरेट करके मैं अपने सारे काम या कर, जैसे तैसे मुझे यूनिवर्स ने सपोर्ट किया और मैं अपना रास्ता निकालती चली गई। आई डोंट नो हाउ वो इट दैट्स हैपेंड। अ ग्रोथ, that's a journey we can discuss other time, but yeah, obviously वो भी एक growth process है, and that also is a part of journey, but yeah, but eventually इससे मुझे कुछ समझ में आया, and I want to talk about that. Do you think, because it happened with me, the more I was in touch with my EQ side, my IQ also started growing, and जो मैं काम को इतना अच्छे से नहीं कर पाती थी, be it like that logical work, it also started improving, because I remember when I started doing job, I was not doing that good. Matlab, it took me 2 3 4 years to be in that pace where I was among the good performance of some company, right? But as I started working on EQ part, like more writing, more creative side, more talking to people, more developing my consciousness, I started improving in my IQ as well. So do you also have this experience, or do you think differently? Uh, I actually second you on this, Tuti. How? I'll tell you. So as we have started our discussion from the point IQ, right? IQ Right. में आप कौन सा ब्रेन यूज हो रहा है? आपका राइट ब्रेन यूज हो रहा है, कैलकुलेटिव ब्रेन यूज हो रहा है, लॉजिकल ब्रेन यूज हो रहा है, जिसको हम कॉन्शियस ब्रेन बोलते हैं, वो यूज हो रहा है। Right. जितने भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हो या जितने भी आप अपने डिसीजंस बना रहे हो, वो आप आईक्यू के बेसिस पे बना रहे हो। तो कैसे न्यूरल पैटर्न्स बनेंगे आपके? जो बाय Hmm. डिफॉल्ट आपके न्यूरल पैटर्न्स बनेंगे वो आईक्यू के बेसिस पे बनेंगे। अभी Right. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आई मीन what emotional balance is or what emotional intelligence is, this is nothing just a balance in between your conscious as well as your subconscious mind. So your Right. conscious mind picks up all the information, logic, language, everything जिससे भी हम interact करते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कोई भाषा समझ में नहीं आती है, सिर्फ आपके फीलिंग्स समझ में आते हैं, आपके सेंसेशंस समझ में आते हैं। और आपके सेंसेशंस और आपके फीलिंग्स के बेसिस पे आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम एक सबलिमिनल लिमिनल वॉइस बोल रहे हैं ना, कि दो वॉइस Hmm. कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, Right.
तो वो जो हम्म सबकॉन्शियस वाली वॉइस निकल के आती है ना, वो हम्म सबकॉन्शियस वाली वॉइस आपके फीलिंग्स और आपके सेंसेशंस के बेसिस पे होती है, विच हम्म इज गोइंग टू टेल यू दैट आपका बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है, या आपकी बॉडी को क्या अच्छा लग रहा है। सो हम्म अगर आप विपाशना की लैंग्वेज में भी बोलोगे, देर आर टू राइट टाइप ऑफ सेंसेशन। एक हम्म सेंसेशन आपको अच्छी लग रही है, एक सेंसेशन आपको खराब लग रही है। हाउएवर हम बोलते हैं कि हमको समता में रहना है, ना अच्छा देखना है ना बुरा देखना है, बट राइट on the other side how we operate or how our brain operate is that आपका ब्रेन बाय डिफॉल्ट एडिक्टिव हो जाता है अच्छी वाली सेंसेशंस के लिए, राइट राइट। एंड राइट आप आईक्यू के बेसिस पे, यानी कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को डोमिनेट करके अपने डिसीजंस ले रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप बिल्कुल ही सटल कर रहे हो, बिल्कुल ही सबलाइम कर रहे हो, साइड बिहाइंड कर रहे हो। तो आपने क्या किया, आपने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। राइट वेरी राइट इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, तो वो इम्बैलेंस आपके काम में, आपके लाइफ में, आपके हर डिसीजन में आएगा ही आएगा। डजंट मैटर आप कितने बड़े स्कॉलर हो, डजंट मैटर आप कितने अच्छे हो, उल्टा आपके ऊपर ऐसे और इम्पैक्ट्स आएंगे स्तुति, कि आप इतने गिल्ट में चले जाओगे, या आप ऐसे हो जाओगे, यार इतनी तो बेवकूफ मैं कभी नहीं थी, ऐसा हम्म क्यों हुआ? हम्म ये छोटी चीज़ मैं कर ही नहीं सकती थी। हाउ कैन आई नॉट पुट अ फुल स्टॉप इन दैट सेंटेंस? हाउ हम्म कैन आई नॉट मेक दैट क्रिएटर लुक ब्यूटीफुल? इतने हम्म सारे लोगों ने बनाया, वो मैं कैसे नहीं कर पा रही हूँ यार, ये तो मैं हम्म बहुत अच्छा कर रही हूँ। हम्म बिकॉज आपने अपने ब्रेन के न्यूरल पैटर्न्स को बाय डिफॉल्ट ऐसा बना दिया। बना दिया राइट टू ऑलवेज एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द गुड साइड या और वो आप समझ नहीं पा रहे हो बेसिकली। सो दैट इज हाउ, when you go onto the spiritual side, so how spirituality helped me. So यहाँ मैंने अपना बैकग्राउंड दिया दैट किस तरह से मेरे लाइफ के डिसीजन टिल डेट चल रहे थे, हम्म बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ। मेरा लॉजिकल ब्रेन ही काम कर रहा था, अपने सबकॉन्शियस को मैंने बिल्कुल सप्रेस कर दिया था, मैं अपने इमोशंस देख ही नहीं रही थी। हम्म एंड कहीं ना कहीं वो ऐसे भी होता है ना हम बचपन से प्रोग्राम्ड होते हैं राइट लाइक के मतलब फेलियर से हमेशा बचो राइट हाँ, जबकि न्यूरल पैटर्न ये होना चाहिए कि फेलियर तो आएगा ही दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ रिजेक्शन तो होगी दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंगर तो होगा ही दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ go with the warrior spirit and get like try it and move on like obviously you have to feel it you have to owe it then only you can move on अगर आप सोचो नहीं नहीं ये तो फेलियर वाला रास्ता है मुझे तो इससे बचना है मैं तो इधर जाऊंगा so why you are taking the wrong path actually in मतलब quest of going to the right path you are taking the wrong path by default and that's how EQ and IQ I think वहां पे clash होना शुरू होता है that's the point where sometimes you have to take the risk or the failure and then move on from that ठीक है मतलब उस टाइम अगर आपको लगता मे बी आई कुड हैव you could have opted humanities ज्यादा से ज्यादा क्या होता ठीक है there could be something which have different thing but just because 100 people are doing something and you want to go to that because वो slightly safe लग रहा है and it's going with the logical pros of yours that's how it I think it start clashing and I think this had must have happened with most of the millennials like जो भी हमारे generation के थे and when I'm taking हमारी generation I'm talking about 86 87 88 and so on till 92 93 I would say that is the kind of generation between like first half before 95 so yeah so yeah you were saying something that was my point of view I just wanted to specify that Because we are flooded with information. So my hmm. say is we are flooded with information. अभी इतना information है स्तुति हमारे अब पास, तो हमें हाँ एक चीज पे कोई भी information collect करना होता है, we just go on to Google and the other search engines, and there are so many other platforms, from where you can collect all the information. And once you are flooded with information, what you are going to do? You're going to process that information, right राइट? क्या right प्रोसेस करोगे इन्फॉर्मेशन, सो आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव होगा? लॉजिकल पार्ट एक्टिव होगा। right डिफॉल्ट आपने बाय डिफॉल्ट एंड अननोइंगली आप अपने इमोशनल साइड को या सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल सप्रेस कर रहे हो, राइट? बिल्कुल योर सिस्टम इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल, all hmm. करेक्ट? सो right वहां पर आपको वो हेल्प ही नहीं करेगा। अभी जब
आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हो, अभी स्पिरिचुअलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन एंड ऑल। कोई रिलीजन नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिर्फ Everything is one. जुड़े हुए हो उसमें, राइट? व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, आपको समझ आने लगता है कि दिस इज व्हाट आई वांट, Yeah, दिस इज right. हाउ आई फील राइट। अभी यहाँ गुड और बैड को अगर भूल जाएं, वो आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना होता है विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एंड उसमें पूरी उम्रें निकल जाती हैं लोगों की, True, true, true. But राइट? it's more about connecting to your authentic self, like who you are, and that's how meditation helps. Yeah, yeah, go ahead. Yeah, एग्जैक्टली, एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं होता है फॉर सो मेनी थिंग्स, वी for डू नॉट sure. एक्सेप्ट आवर इमोशंस। I आई वाज agree. able to accept myself that I want this thing, True, true. बिकॉज सोसाइटल मेरे जो प्रोग्रामिंग हुई या कंडीशनिंग हुई वहां पे, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, इस तरह से मेरी कंडीशनिंग हुई, और Right. उस कंडीशनिंग को ही मैं लेकर के चल रही हूँ। व्हेन माय हार्ट सेड समथिंग दैट ये चाहिए, वो मैंने सुना ही नहीं। एंड True. वो बहुत छोटी चीज से लेकर के लाइफ की बहुत बड़ी चीज तक हुआ। True. और True. एक क्वेश्चन बनता है ना, आप अपने ब्रेन को पुश कर रहे हो, नहीं यार तू जो बोल रहा है गलत है, जो इंस्टिंक्ट आ रही है वो गलत है, यही सही है क्योंकि ये लॉजिक बोल रहा है। Hmm. Hmm. And that's where the twin flame concept start pitching it, but we won't be discussing it. वो तो endless है, वो तो because that's the point where that it we can started in you discuss that for whole night, and वो you तो know पूरी रात चलेगा, वो तो पूरा that नाइट चल सकता है, but that's the point where our growth started basically, because that was the point where your heart was saying that this person is something different, and your brain was saying कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, this is not possible. So that's how we did. Anyways, let's not get into that concept, but to the point that you were saying, I wanted to share one of the negative example. So this I think I shared with you personally as well. For longest time I never accepted that I'm a jealous person, for longest time. And if I see somebody, मुझे ऐसा लगता था how jealous is this person, how jealous is that person. But when I meditated and I looked inside, and there was a lot of shadow work which we say, like in terms of spirituality, I got to know that I'm such a jealous person. Like I created a whole list of people who I was jealous with. So that's how EQ came into picture, क्योंकि you were suppressing your emotions. तुम्हें लग नहीं, मतलब तुम्हारे को किसी के लिए you are not feeling that good, and then you are saying कि मेरे को तो jealousy नहीं होती, मैं तो I'm a very normal person. But then when you deep dive into yourself and you start healing and you start getting into your journey, you know how much are the traits that are like वो कितने टाइम से दबे हुए हैं, and you are not even letting them go. So yeah, I wanted to confess this via this podcast. Ke, हाँ, because I was that person. Obviously, I'm no more, and I'm in process of growth already. But because वो 20 years, 25 years वो दबे ही रहते हैं अंदर, and you never accept it. That's how you're like suppression की point वहाँ से शुरू होता है. Then like तुम्हें this happened with me again. मुझे गुस्सा आता था, ठीक है, but I never used to accept कि मुझे गुस्सा. I was like कि नहीं नॉर्मल, मतलब मैं कहाँ गुस्सा करूँ, यही बंदे की गलती है, यही ऐसा कर रहा है, ये मेरा exactly, बॉस गलत, ये मेरे पेरेंट्स गलत, ये मेरे exactly, XYZ गलत, मतलब सब exactly, गलत, लेकिन मैं ठीक हूँ, exactly. क्योंकि मेरे को तो गुस्सा नहीं आता, क्योंकि ये काम ऐसे कर रहे हैं. मैं लेकिन तो द गलत पॉइंट हुई इज ही आई नहीं, हैड दिस सारी दुनिया एंगर. गलत है। मैं तो गलत हुई नहीं, सारी मैं तो दुनिया गलत गलत हुई है। नहीं, हाँ, पॉइंट. एंड दैट वाज द पॉइंट वेयर your journey start, when you start accepting and acknowledging कि भाई तुम्हें किस बात का गुस्सा आ रहा है. Is it a wound inside you that needs to be healed? वही वो भी तो इमोशनली है ना, क्योंकि आपने सप्रेस करना शुरू कर दिया. अब आप जब लोअर वाइब्रेशन सप्रेस करे जा रहे हो, लाइक एंगर, गिल्ट, whatever, jealousy, whatever the lower vibrations are, when you are suppressing, तो आप हायर पे तो जा ही नहीं पाओगे ना, आप लव, एक्सेप्टेंस, नॉलेज पे तो जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप अभी भी लोअर उससे ऑपरेट कर रहे हो. So I want to cut you down here हम्म. because you know हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लोअर वाइब्रेशन की और हायर वाइब्रेशन की. हम्म. सो लैंग्वेज में बोलूँ ना, when I wasn't that much awakened, मेरे को यही नहीं समझ में आता था कि मुझे गुस्सा आ रहा है. वो मेरा हाँ, नॉर्मल बिहेवियर था. I wasn't राइट. able to recognize that emotion of mine. हम्म. I wasn't able to recognize that emotion of mine that I am feeling jealous of someone.
True. मुझे वो नॉर्मल लगता था. आई मीन आई यूज टू कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स, बट मुझे समझ में नहीं आता था वो कंपैरिजन हो क्यों रहा है. True. True. वो एक इमोशन था, एक नेगेटिव इमोशन था. वो आइडेंटिफाई करने के लिए आई हैव बीन थ्रू अ, यू नो यू नो व्हाट माय जर्नी, Yeah. Even I, राइट. you know my journey. Yeah. Right. राइट. तो Right. उस पूरी जर्नी से मुझे निकलना पड़ा. देन आई वाज एबल टू आइडेंटिफाई, ओके, दिस इज दिस इमोशन and this is a lower frequency emotion. If I Right. have to go there, I have to be on the higher side of this frequency. Hmm. And वहां से आपका एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होता है. जर्नी स्टार्ट होता है एंड दैट्स हाउ वेयर स्पिरिचुअलिटी कम्स इन. लोगों को लगता है लाइक बैठ जाओ मेडिटेशन में. दैट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी एट ऑल. इट स्टार्ट फ्रॉम द राइट. वेरी बेसिक ऑफ योर शैडो वर्क वेयर यू start accepting that you have flaws, and you have flaws to that level which have been suppressed throughout your maybe childhood, adulthood, and most of like your half of the life job, like it has been passed and you are still in that emotion. इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी. Hmm. वो मैं ये ऐड करना चाहूंगी दैट व्हेन यू स्टार्ट, और somehow, as I have already mentioned that we are flooded with information. हर तरह की information आपके Hmm. पास आ रही है, पॉपअप्स हो रहे हैं, पॉडकास्ट आ रहे हैं, जहाँ पे कि आपको बोला जा रहा है दैट यू आल्सो हैव नेगेटिव इमोशंस, आप एक्सेप्ट करो उसको. Hmm. समटाइम्स आप गलत एक्सेप्ट कर लेते हो, आपको वो समझ में ही नहीं आता. यू नो Yeah. सारी चीजें आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थोप रहा है आपके ऊपर, Hmm. right? Hmm. So Hmm. if I Right. tell you about myself, in some days back or some months back, some things like these happens, जहाँ पे कि outer situation ऐसा बना हुआ है कि वहां नेचुरल है मुझे गुस्सा आएगा. आई Right. एक्सेप्टिंग दैट मुझे गुस्सा आ रहा है, या वहां पे मैं अपने गुस्से को सप्रेस कर रही हूँ. राइट. Yeah. वो गुस्से को सप्रेस कर रही हूँ क्यों? क्योंकि मुझे उस सिचुएशन में अच्छे बने रहना है. हाउ कैन आई लीव दिस पर्सन? व्हाई कांट लीव दैट पर्सन इफ दैट पर्सन इज नॉट ट्रीटिंग यू वेल? True. True. व्हाट True. अबाउट योर सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ? आप अपनी वर्थ को खुद ही खत्म कर रहे हो ना. True. True. And I want to specify specifically here कि spirituality does not mean that you have to keep spreading love, जहाँ पे हाँ. आपको अपना courage दिखाना है वहाँ पे you have to take stand up. ऐसा नहीं है कि गुस्सा आ रहा है तो हमेशा गुस्सा दिखाना है. नहीं राइट. है. Sometimes anger is a sign that you are showing your courage. राइट. Sometimes anger is a sign that you are on the right path. It's not always a bad thing. You just need to that convert that energy in a right way. And intentionally आपका उस किसी person के लिए बुरा नहीं है, and you are doing it because that person should have an idea or learn a lesson, and that's completely fine. I think लोगों को बहुत ज़्यादा misconception है. We should be clear कि spirituality never means कि आपको सिर्फ मतलब you have to be kind, that's fine, but that does not mean you have to suppress like your emotions. And if you're feeling anger, you have to suppress it, because anger is also a sign of courage, right? But that depends कि आपको how you are articulating it. तो वो इवेंचुअली धीरे धीरे आ जाता है. नाउ आई डोंट फील लाइक कि अगर मैं किसी को एंगर आई एम पुटिंग इट, बट मैं गुस्से से नहीं कर रही हूँ, बट माई इंटेंशन, क्योंकि पहले तो ऑफ अपने वूंड कर रही थी. बट इफ आई एम डूइंग इट नाउ, आई एम अवेयर एक इमोशन है, एंड अंदर से आई एम नॉट फीलिंग इट, लाइक इट्स नॉट हार्मिंग मी आउट. द अदर पर्सन जस्ट नीड टू बी hear it out so that I mean they know that they have to take something or do something or something like that in that term. So yeah, you were saying So, something. Yeah. anger, और एनी काइंड ऑफ इमोशंस, अगर आप बैकग्राउंड में जाओगे, अंडरस्टैंड करोगे व्हाट वी वर अर्लियर, वी वर स्कैवेंजर्स, Hmm. True. right? We True. were not living in that I mean this protective environment. We were not having these pakka houses earlier. जंगल में Right. रहते थे, वहीं Right. खाना खाते थे, वहीं Hmm. खाना खुद से शिकार करके लाना पड़ता था. We were scavengers at that Hmm. time, right? Right. So Right. anger, fear और एनी नेगेटिव इमोशन फॉर दैट से आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म था, आपके ब्रेन का डिफेंसिव मैकेनिज्म था. बट डाउन द लाइन इतने साल आते आते वो डिफेंसिव मैकेनिज्म पे आपका होल्ड ही चला गया, बिकॉज Hmm. आप इतने व्हाट वी कैन से इतने हाई सोसाइटी में या फिर इतने हाईली इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में आप रहते हो कि सब कुछ आपका लॉजिकल ब्रेन ही कर रहा है. एवरीथिंग इज लॉजिक एंड फीलिंग सेंसेशन इज नोवेयर इन द वर्ल्ड, जिस पे कि आप काउंट करते हो या डिसीजंस लेते हो. Hmm. Hmm. Right. Right. सो
सिंस अ चाइल्ड गेट्स इनटू प्री नर्सरी, नर्सरी, उसको वहीं पे सिखाया जाता है कि आपके इतने परसेंट मार्क्स आने चाहिए या ग्रेड्स ऐसे आने चाहिए, आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं है, आपने उसके दिमाग में बेसिक रिवॉर्ड सिस्टम फिट कर दिया। वो रिवॉर्ड सिस्टम में ही बेचारा घूमता रह जाता है कि अरे मेरे अच्छे ग्रेड्स नहीं आए हैं, आई एम नॉट अ गुड चाइल्ड, मैं तो बहुत खराब बच्चा हूँ पढ़ाई में। Hmm. और वो Hmm. उस नेगेटिव इमोशन को उतनी छोटी सी एज में प्रोसेस कर रहा है। Right. दिस Right. इज द एज जब भी की कॉग्निटिव एबिलिटीज आपके डेवलप हो रहे हैं, एंड वहां पे वो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है दैट आई हैवंट गॉट गुड ग्रेड्स इन माय स्कूल, इन माय क्लास, एंड Hmm. आई एम नॉट अ ब्राइट चाइल्ड लाइक दैट चाइल्ड। वो वहां पे कंपेयर कर रहा है अपने आप को, आई एम Hmm. नॉट ब्राइट चाइल्ड लाइक एक्स वाई जेड चाइल्ड, दैट किड इज डूइंग रियली वेल। वो आपको नहीं बोल रहा है उस चीज को, लेकिन अंदर उसके चल रहा है वो, और वो पूरा लाइफ लॉन्ग चलता है। और वो फिर इंटरनल कंपटीशन ऐसा हो जाता है आपका, आप अपने पे तो फोकस कर ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ वर्ड से compete करने के लिए अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आप वर्ड से compete करने के लिए कोई भी काम कर रहे हो दुनिया में। आपको Exactly. डॉक्टर क्यों बनना है, या अपने बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर क्यों बनाना है? क्योंकि Hmm. आपको कंपेयर कराना है अपने नॉन सर्कल से कि मेरा बच्चा बहुत ब्राइट है। Right. Right. Hmm. बिल्कुल. एंड अगर आप बैकग्राउंड में जाओगे, तो उस बैकग्राउंड में वाई आर पेरेंट्स आर लाइक दिस, और हमारे फोर फादर्स या हमारी जनरेशन ऐसी थी। यू नो आप पूरी एक कल्चर को देखो, इफ विल सी दैट इंडिया में देयर वाज अ टाइम जब ये मुगल्स ने इन्वेड किया, Hmm. Hmm. they Hmm. brought their cultures in, then उसके बाद फिर ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने आपको रूल किया, Hmm. they were Hmm. trying to impose their rules on us। Right. Right. अगर आप इससे पहले के इंडिया में जाओगे, when Hmm. there were no girls, when there were no Britishes, ऐसा कोई नहीं था। आप देखिए कितने वॉर्स होते थे, या फिर कितने ऐसे, आई मीन हम लोगों का जो गुरुकुल सिस्टम था या कोई भी सिस्टम था वहां पे, उसके बेसिक कॉग्निटिव को डेवलप करने का जो है Hmm. प्रोग्राम है। Hmm. मंत्रा चैंटिंग आप कराते हो, जो आप स्पिरिचुअलिटी में अभी कर रहे हो, वो क्या है? बेसिकली Hmm. एक पर्टिकुलर मीटर में आप कुछ वर्ड्स को, कुछ ध्वनि को कुछ बोल रहे हो, राइट? और उसकी Hmm. वजह से आपकी ब्रीथ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में निकल रही है, वो वाइब्रेशन आपकी बॉडी पे आ रही है, Yeah. एंड इन दैट वाइब्रेशन यू रिमेन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ये आप अपने बच्चे को सिखाते थे, अभी आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो? कि आपको अपने ग्रेड लेकर आने हैं। Right, right. And this reminded me of that thing where which I read on Instagram many times, like 12 and 18 years of education, and still no one told us how to unlock our chakras. So, and then at this age, we are still trying how to do it, or like we are in process of doing it. So yeah, obviously, and I think I think we discussed it really well, but we are reaching towards the end of this podcast, so I wanted you to, can we summarize it in 2 3 pointers for our audience, that like how we can balance IQ and EQ, or like what should be the process, or how can they just kickstart their journey? Obviously spirituality doesn't come like miraculously ek din mein, things don't change, but yeah, how can someone kickstart their journey, and how can someone start working on EQ equally as their IQ? Can we summarize it? Yeah. एब्सोल्युटली, सो हाउ वी कैन डू इज, मैं अपने तरीके से रिलेट करके इसको बताती हूँ। सो हाउ Hmm. आई हैव स्टार्टेड रीडिंग a lot of content related to this first, Hmm. that content motivated me कि इस जर्नी में जाकर के देखो। देन आई अंडरस्टूड द बैलेंस ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ बड़ा सिंपल है, हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर। Hmm. यूजुअली हम लॉजिकल माइंड के थॉट्स पे ही जाते हैं, Hmm. बिकॉज लॉजिकल माइंड आपकी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। सो वो आपको ये डिफरेंस समझना है, थिन लाइन समझना है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, लॉजिकल माइंड है, वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, एंड योर सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेसेस द इंटरनल इंफॉर्मेशन। आपका जो वो कलेक्टिव है ना, जिसको आप एक कलेक्टिव बोलते हो, या आपका पूल बोलते हो, जिसमें इतनी इंफॉर्मेशन है, Right. Hmm. तो वो आपका सबकॉन्शियस आपको बता रहा है। सो Hmm. whenever योर
multiple thoughts are coming into your mind, like जिसको आप ओवर थिंकिंग बोल रहे हो, या फिर बहुत सारे थॉट्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं, अपने आप को एक थॉट दे दो, यहाँ पे आपका लॉजिकल माइंड काम कर रहा है, एंड यू हाँ आर प्रोसेसिंग द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ट्रिगर्स इंफॉर्मेशन एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो कि एक्सटर्नल है। इंटरनल आपको इतने थॉट्स आएंगे ही नहीं, एक्चुअली आपको एक भी थॉट नहीं आएगा, क्योंकि right सबकॉन्शियस कोई लैंग्वेज समझता ही नहीं है, वो आपको सिर्फ फीलिंग्स बताएगा, आपको right सेंसेशंस बताएगा। hmm इधर यू hmm फील योर बॉडी इज गेटिंग हीटिंग अप, राइट, आप गुस्से तो आपका हो जाता है, या आपके जो हेवी मसल्स हैं, थाई मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, उसमें आपको कंपन होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो आपका hmm एंगर, दैट इज द सिग्नल ऑफ एंगर, नो। सो इधर फाइट और फ्लाइट। true, fight or flight, yeah, right. सो उन सेंसेशंस को समझिए, sit hmm with yourself in calm for at least 20 minutes in a day. If you are a starter, yeah आपने अगर बिल्कुल अभी शुरू करना है, या आप एक ऐसा मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, just sit with yourself, try to sit with yourself only for 20 minutes in start. 20 minutes आप बैठोगे, आप अपने फीलिंग्स को देखोगे, सेंस you'll start identifying, आपका सबकॉन्शियस आपको और देगा, आपको कलेक्टिव की इंफॉर्मेशन लेकर के देगा, जिसको हम चैनलिंग बोल रहे हैं या डाउनलोड्स बोल रहे हैं, वो होने लगेगा आपको वंस यू कंटिन्यू डूइंग और गोइंग इनटू दिस ट्रूथ। So, I think you summarized this well. Just wanted to add, like, आपका brain का basically neural pattern change होने लग जाएगा eventually with this practice of meditation or whatever you're saying, sitting yourself alone in 20 minutes. You will start getting your own answers. So you are like, आपका सिर्फ logical mind, वो जो आपको pros and cons बता रहा था, उसके अलावा there is a mind which will guide you right. That's where your gut feeling, or what we say subconscious mind, will come in picture. So one liner which I was saying, like, आपका दिमाग का basically neural pattern change होने लग जाएगा, and that's how you are, like, you अपने आप you get on the right path. That's So what you're saying. basically, our brain is the only organ which uses the maximum energy. जो भी पूरा एनर्जी हम डे का कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपके ब्रेन में होता है, बिकॉज योर ब्रेन वर्क फॉर 24 फॉर 24/7, राइट। उस इसमें ब्रेन का जो एक बेसिक लॉजिक होता है काम करने का, वो ये होता है कि सेट न्यूरल पैटर्न्स को उसको बनाना है, सो दैट लेसर एनर्जी कंज्यूम होगा। सो if I am looking at Stuti and I am getting a certain feeling that मुझे अच्छा लग रहा है, so whenever I meet Stuti मुझे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो सेट पैटर्न मेरे ब्रेन ने बना दिया है, मेरा ब्रेन उसको पुश नहीं करेंगे, दूसरा फीलिंग नहीं लेकर आएगा, right राइट। सो उसके लिए बेसिक लॉजिक ये समझना पड़ेगा दैट योर ब्रेन एक्शन आ रहा है, वो आपके ब्रेन का एक जहाँ पे कि तुरंत ट्रिगर होता है, समथिंग कम ऑन टू यू, आपके एमिगडाला पे इंफॉर्मेशन गया एंड आप रिएक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। एंड एक आपका प्री फ्रंटल पोर्शन, जहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचने में, the information which reaches to amygdala is much faster than information which reaches to cortex. So सिर्फ इतना करना है to give logic to your brain whenever you are going to react on certain things, या आप बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के डिसीजन में रिएक्ट कर रहे हो कि this information is not yet processed in my brain, amygdala का रिएक्शन है, रुक जाओ। The information reaches to कॉर्टेक्स ऑफ योर ब्रेन, वो प्रोसेस करेगा एंड आपको राइट डिसीजन देगा। सो एक स्पैन होता है वेयर स्पिरिट हेल्प्स यू एक्चुअली, वो स्पैन को बढ़ाने के लिए, वो जो रिएक्शन का स्पैन है या रिस्पॉन्स देने का जो स्पैन है, वो बढ़ा स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प करती है। सो दैट इज हाउ स्पिरिचुअलिटी, आई एम स्टिल इन growth phase, and ये पूरी जिंदगी चलने वाला है। I know I cannot leave my meditation for one single day. So वहां पर मुझे वो स्टैंड को बढ़ाते जाना है, और उस इंफॉर्मेशन को मुझे ये कैसे प्रोसेस करना है अभी। So that is in my life, and those who are thinking to give a kickstart to meditation or practices
sit with for at least 15 to 20 minutes in a day. Very specifically, if they are going to sit with themselves in a night, once complete their पे उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है और फिर 15-20 मिनट के लिए अपने they be able to see more sensations in their body. Hmm. And I want to tell about my experience. Like I did Vipassana in 2019, and for only 1 year, I'm continuously doing this. What you are saying, like sitting 20 minutes or maybe more, most many times, like for 40 minutes, 45 minutes, and this has changed my life. Like this has changed my life to the core. I cannot express the benefits of it, but yeah, I just wanted to specify this in the end of this podcast that this actually changes your life. If you not 20 minutes, you can start with 10 minutes and then can like eventual growth के साथ 20, 30, 40 और 1 hour जितना भी ठीक लगे, but at least start. So this can change your life for sure. So yeah, I think we can end it up. Like we slightly exceeded the time as well, but I am like super happy. This came out really well. And thank you so much, Nidhi, for being my first guest. And I'm super excited for this to be released. I mean, I think this will be going in first week of April. So yeah, any last messages for our audience, and then maybe yeah, we can end it. Just take it easy, Yeah, feel the feeling, do not become the feeling. yeah. That Thank that you so much. Thank you so much. So, thanks everyone for listening. If you are listening till end, I think it's our pleasure, right? You listened us till the end. So, any of the comments, any of the DMs, feel free to reach out to us in Instagram handle. My Instagram handle for this podcast is Tuti Speaks, and you can either slide in DMs or I'll share their like Nidhi's Instagram as well, so you can write directly reach out to her as well, and be with me in this journey of season 2 of Tutti Speaks. Thank you so much. I'll maybe catch you up in the other one. Thank you. Bye. Thank you, Stuti. Thanks. Thanks everyone. Thank you. Thank you, Nidhi. Bye. Bye.